Assalamualaikum. Dear student, in our previous video we had learned about the oxygen cycle. In oxygen cycle we had learned that oxygen forms 21% of the earth atmosphere. Also we learned that oxygen is highly reactive gas and it readily reacts with other element and form a compound. Oxygen is released in the process of photosynthesis where it is used up in the process like respiration, combustion, decomposition, etc. Today we will learn about the nitrogen cycle. The two questions are there on the page number 86. First question is, what is meant by nitrogen fixation? What is meant by nitrogen fixation? Nitrogen fixation क्या है? The conversion of atmospheric nitrogen into the compound like ammonia and nitrate which can be used by living things is called nitrogen fixation. The conversion of atmospheric nitrogen into the compounds like ammonia and nitrate which can be used by living thing is called as nitrogen fixation. This is brought about by both biological and atmospheric factors. See, nitrogen, the greatest proportion of air consists of nitrogen. Nitrogen forms 78%. That is maximum portion of the atmosphere. सबसे ज़्यादा जो गैस है 78% एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस है. The greatest proportion of the air consists of nitrogen. Nitrogen is an important constituent of protein. Protein का important constituent है. Hence it is important for the growth of living thing. Living thing के लिए protein बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स. हाउएवर नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. लेकिन अपन डायरेक्टली ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं एयर से, लेकिन नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली भले ही वो 78% है अपन उसको यूज़ नहीं कर सकते. उसका फिक्सेशन ज़रूरी है. नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ नेसेसरी बिफोर इट कैन बी यूज. तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन मीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, अमोनिया नाइट्रेट में, उसको बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो पहला क्वेश्चन समझ में आया. I repeat the question. What is meant by nitrogen fixation? The conversion of atmospheric nitrogen into compounds like ammonia and nitrate which can be used by living things is called as nitrogen fixation. This is brought about by biological and atmospheric factor. Biological factor और atmospheric factor ये दो काम करते हैं. तो see 78% है नाइट्रोजन. It is necessary for the maintenance of the cycle of the nature. The circulation and recycling of nitrogen gas into the form of different compound through various biotic and abiotic process. बायोलॉजिकल फैक्टर, एटमॉस्फेरिक फैक्टर. तो बायोलॉजिकल फैक्टर बायोटिक फैक्टर में आएगा और अबायोटिक में आएगा एटमॉस्फेरिक फैक्टर. तो बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस साइकिल. इन नेचर इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल. तो see the definition again. The circulation and recycling of nitrogen gas into the form of different compounds through various biotic and abiotic processes in nature is called as nitrogen cycle. तो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म ले नहीं सकते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन या नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ज़रूरी है. अमोनिया, नाइट्रेट, ये सारे कंपाउंड जो है प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन वो जो है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लिविंग थिंग्स उसको लेते नहीं है. उसका फिक्सेशन ज़रूरी है, यानी उसको कंपाउंड में कन्वर्ट होना, अमोनिया में, नाइट्रेट में, कंपाउंड में कन्वर्ट होना ज़रूरी है. दैट इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर करते हैं. बायोटिक फैक्टर में कौन करता है ये? तो बायोलॉजिकल फैक्टर फिक्सेशन बोलेंगे उसको. बायोटिक चीज़ें यानी मैक्रो ऑर्गेनिज्म ये काम करते हैं. मैक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रिंग अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन आर ऑफ टू काइंड. वन ऑफ दिस टाइप आर फाउंड इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ सर्टन प्लांट्स while the other are found in soil. दो टाइप के मैक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया होते हैं. एक बैक्टीरिया नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ सर्टन प्लांट्स, लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं, फली वाले या पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं, उसके जो रूट्स पे से छोटी छोटी गांठें होती है जिसको नोड्यूल्स बोलते हैं. और वो नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में, नाइट्रेट में, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं. और अदर बैक्टीरियाज भी है सॉइल में ऐसे बहुत सारे जो ये करते हैं. द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द नोड्यूल एब्सॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस
कंपाउंड, तीन नोडुल में कि बैक्टीरिया एब्सॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू ए नाइट्रोजन कंपाउंड, और कंपाउंड में इसको कन्वर्ट करते हैं. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड इवेंचुअली इनटू नाइट्रेट. फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. तो यहाँ दिया आपको डायग्राम ऑब्जर्व करो. N2 Na नाइट्रोजन हुआ, NH4 जो है NH4 मतलब अमोनियम, और NH3 यानी अमोनिया, NO2 मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO3 नाइट्रेट. तो ये जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होना, यानी ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, जिसको अपन बायोलॉजिकल फिक्सेशन और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन बोलेंगे. एटमॉस्फेयर में यानी अबायोटिक चीज़ें ये साइकिल में कैसा करती है. तो व्हेन देयर इज अ लाइटनिंग इन द स्काई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अ नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जब लाइटनिंग यानी बिजली कड़कती है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है. दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज अगेन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म. ये अगेन ऑक्सीडाइज होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फाइनली फॉर्म नाइट्रिक एसिड. फिर नाइट्रिक एसिड बनता है. दिस नाइट्रिक एसिड फॉल टू द अर्थ, डिजोल्व इन रेन वाटर. देयर इज react with the salt in the soil to form a nitrate. फिर वो सॉइल से रिएक्ट होता है, सॉल्ट से सॉइल के अंदर के फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है. नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है. प्लांट यूज़ दिस नाइट्रेट फॉर देयर ओन ग्रोथ. फिर ये नाइट्रेट जो है प्लांट्स यूज़ करते हैं. तो ये नाइट्रेट कंपाउंड बना रखने का काम यहाँ पर एटमॉस्फेयर में होता है, इसलिए इसको अबायोटिक फैक्टर जो प्रोसेस से हो रहा है ये एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन है. Thus nitrogen in the air become available to living things after biological and atmospheric fixation. तो अबायोटिक और बायोटिक चीज़ें दोनों जो है नाइट्रोजन जो है अपने को अवेलेबल कराती है लिविंग थिंग के लिए. नाइट्रोजन डायरेक्टली अपन यूज़ नहीं कर सकते, इसको नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर करते हैं. बायोटिक फैक्टर में बैक्टीरिया करते हैं और अबायोटिक फैक्टर में एटमॉस्फेयर में थंडर जब आती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है और कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है. फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है रेन वाटर में और नाइट्रिक एसिड बनता है. नाइट्रिक एसिड अर्थ पे फॉल होता है, डिजोल्व होता है, सॉल्ट के साथ मिक्स होकर जो है नाइट्रेट बनता है और वो प्लांट्स वो नाइट्रेट ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं. Through excretion and decaying of living things as well as through burning, nitrogen compounds get decomposed. Thus nitrogen is released back into the atmosphere. फिर वो जो है excretion से through the excretion and decaying of living thing as well as through burning, nitrogen compounds get decomposed. Decompose हो जाते हैं nitrogen compound, nitrogen again release हो जाता है atmosphere में. This is known as nitrogen cycle. That is how the proportion of nitrogen in the atmosphere remain constant. इस तरह से जो है इसका proportion यूज अप होने के बाद भी कांस्टेंट रहता है. तो सी थ्रू एक्सक्रीशन एंड डिके ऑफ लिविंग थिंग्स एज वेल एज थ्रू बर्निंग, nitrogen compound get decomposed. Thus nitrogen is released back into the atmosphere. That is how the proportion of nitrogen in the atmosphere remain constant. अब नाइट्रोजन के यूज़ क्या है, क्या क्या है, ये प्रोटीन का हिस्सा है. ऑल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन साइकिल. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड DNA RNA का जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट इट इज़ इनएक्टिव है ये एंड डज नॉट इजीली कंबाइन विथ अदर एलिमेंट. ऑक्सीजन एक्टिव, ये इनएक्टिव है. मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज़ द फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है. मोस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो है कैन नॉट यूज़ फ्री फ्रॉम द नाइट्रोजन एयर से डायरेक्टली फ्री स्टेट में नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, उस कंपाउंड में कन्वर्ट करके कंपाउंड यूज़ करते हैं. तो ये हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नाइट्रोजन के यूजेस क्या है. तो नाइट्रोजन इज़ यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग. प्लांट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड फर्टिलाइजर, दस हेल्प देम टू ग्रो. प्लांट यूज दिस नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस. लेगुमिनस प्लांट जो से होते हैं उस पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. ज़्यादातर जो है पल्सेस में, दालों में होता है, पॉट्स में, फली में, बीन्स में होता है ये, और ये प्रोटीन के सोर्सेस है.
अपन जो दालें खाते, मर्च, चना, बरबटी, ये सब जो है पल्सेस जो है ये प्रोटीन के सोर्स है, क्योंकि जो है इसके लेगुम्स पे, नूडल्स पे जो है राइजोबम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अदर लिविंग थिंग्स यूज प्लांट एज अ फूड, दिस हेल्प देम टू ग्रो टू। और अपन प्रोटीन जो अपन खाते प्लांट्स, अपने को पल्सेस से प्रोटीन मिलेगा और अपनी बॉडी की भी इससे ग्रोथ होती है। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। नाइट्रोजन इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। नाइट्रोजन इज़ यूज इन इंडस्ट्री फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो है ये बायोलॉजिकल फैक्टर पर अपन ने बैक्टीरिया बनाते हैं, एटमॉस्फेयर में बनता है। इसके अलावा अगर इंडस्ट्री में बनाना है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए तो नाइट्रोजन यूज़ होता है। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड ये कंपाउंड्स बनाने के लिए इंडस्ट्री में अपन नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं अमोनिया और नाइट्रिक एसिड में। नाइट्रोजन इज़ यूज टू मेक अ थर्मामीटर फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जो है थर्मामीटर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है इसमें? तो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस में आएगा पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट थ्रू एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। एटमॉस्फेयर में बताया थंडरिंग की वजह से होता है, इंडस्ट्री में भी बना सकते हैं अपन, और बायोलॉजिकल फैक्टर में बैक्टीरिया करते हैं, ये तीनों प्रोसेस से होता है। अमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटा वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बताया कि अमोनिफिकेशन होता है। फिर नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन में आएगा conversion of ammonia into nitrate and then nitrite. डेंट्रिफिकेशन होता है कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अगेन नाइट्रोजन में ये जो है चला जाता है एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ नोन एज डेंट्रिफिकेशन। तो ये 4 प्रोसेस होती है, इसमें कंटिन्यूसली शुरू रहती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, अमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया, डेड बॉडीज से जो अमोनिया रिलीज होता है। फिर जो है नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट देन नाइट्राइट, और फिर डेंट्रिफिकेशन में जो है कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन गैसियस नाइट्रोजन गैस के शक्ल में, फिर ये वापस एटमॉस्फेयर में चले जाता है। दिस इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन। इन दिस लेसन we had learned the carbon cycle, biogeos cycle. First we learn energy flow in an ecosystem, after that food chain and food web. After food chain and food web we had learned energy pyramid, and after energy pyramid we had learned biogeochemical cycle. And the 3 cycles are there, the carbon cycle, the oxygen cycle and nitrogen cycle. Read this lesson and be prepared for test. In our next video we will solve exercise. Till then, Allah Hafiz.